Good morning, students. In our chapter Photosynthesis in Higher Plants, we have talked about the various conditions which are necessary for photosynthesis. That is, sunlight, which is provided by the sun, chlorophyll, it is present in the green part of the plant, then water and minerals, they are absorbed by the root. So these are the various conditions which are necessary for photosynthesis, and we have studied that if any of the condition is not there, then the plant is not able to do photosynthesis. Means the product of photosynthesis is starch, and when the photosynthesis does not occur because of any one of the raw material, then plant will not be able to do photosynthesis. And how we will be able to come to know about that photosynthesis has not taken place? For that we have talked about the various experiments जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, and in the 10th standard also we have studied that when iodine test is done on such plant or by taking the leaf of that plant, then it will not give the positive result. Means the color of the leaf will not turn bluish black. So these were the various experiments which were showing about the necessary conditions for photosynthesis. Now we will study about the early experiments. Now, many of the experiments were taking place in the earlier time also for understanding the photosynthesis. Joseph Priestley in 1770, what he did a series of experiments, and these series of experiments showed that the air is necessary for the growth of green plants. Air means that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. This Priestley, he discovered oxygen in 1774, and what he observed that a candle burning in a closed space. This is the bell jar जो कि पिक्चर में शोन है, जो कि एक राउंड बॉटम जैसा आपको लग रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेल जार. प्रेस्ली ने क्या किया, जब उसने उस बेल जार के अंदर एक बर्निंग कैंडल को रखा, एंड व्हाट ही ऑब्जर्व दैट दिस कैंडल इज गेटिंग एक्सटिंग्विश्ड. Now why this candle is getting extinguished? Because it is not getting oxygen necessary for photosynthesis. Now what he did, उसने जो है फिर एक माउस रखा उस क्लोज्ड स्पेस के अंदर, और उसने क्या देखा कि जो बर्निंग कैंडल है और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर, दोनों के दोनों जो है ना ही तो बर्निंग कैंडल और ना ही जो एनिमल है वो उसके अंदर सर्वाइव कर रहा है. एज इट इज शोन इन द डायग्राम वी आर एबल टू सी इट इज़ अ बेल जार, burning candle is there and mouse is there, and what is happening that this candle is getting extinguished and the mouse is also being damaged, it is also getting killed. Now what Priestley did, he kept one of the plant in this closed the bottle, and what he observed that the candle is burning, mouse is alive, and plant is also there and it is surviving. सो उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जब जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, इन एक्चुअल प्लांट एयर को रीस्टोर कर रहा है. किस तरह से रीस्टोर कर रहा है, दिस कैंडल इट इज़ बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अब प्लांट ने जो ऑक्सीजन दी, कैंडल ने उसे बर्निंग के लिए यूज़ किया एंड माउस ने उसे ब्रीथिंग के लिए यूज़ किया. नाउ आफ्टर ब्रीथिंग व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पर और बर्निंग के बाद भी CO2 प्रोड्यूस हो रही है. तो जो ये CO2 प्रोड्यूस हुई बर्निंग से या फिर माउस के रेस्पिरेशन से, इसे प्लांट ने यूज़ किया फोटोसिंथेसिस के लिए. एंड इन दिस वे प्रेस्ली शोज दैट प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव. जो भी कैंडल ने और जो है माउस ने रिमूव किया उसे प्लांट ने रिस्टोर कर दिया. नाउ फॉर दैट, can you imagine how Presley would have conducted the experiment using a candle and a plant? उसने किस तरह से उस एक्सपेरिमेंट को किया होगा, उसने एक बेल जार लिया होगा, उसको कवर किया होगा एंड ऑल. नाउ ही वुड नीड टू रिकिंडल द कैंडल टू टेस्ट वेदर इट बर्न्स आफ्टर अ फ्यू डेज. अब उसने क्या किया होगा, रिकिंडल उसको दोबारा जलाने के लिए कि जो कैंडल है उसे दोबारा कब जलाना पड़ता है, फ्यू डेज़ के बाद. इस तरह के सिमिलर सेटअप जो है प्रेस्ली ने किए
by placing once in the dark and once in the sunlight. सेम एक्सपेरिमेंट उसने लाइट में और डार्क में रख के किया. देन जेन इंजन हाउस, उसने क्या शो किया कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. This sunlight, what it will do, it will help in purifying the air fouled by burning candle or breathing animal. breathing animal ने चाहे burning candle ने जो air को impure किया, light will also play the role in purifying that air. and for that जो इंजन हाउस है उसने many of the experiments किए aquatic plants को लेकर के, और जिन्होंने क्या शो किया कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स वाइल इन द डार्क दे डिड नॉट. कि जब उन एक्वेटिक प्लांट्स पर लाइट फॉल कर रही थी तो लीफ के पास हमें स्मॉल बबल्स नज़र आ रहे थे. एक्चुअल में क्या है, जब लाइट फॉल हो रही थी एक्वेटिक प्लांट्स पर तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है सो ऑक्सीजन इज गिवन आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, यानी कि बबल फॉर्मेशन हमें ऑब्ज़र्व कर पाते हैं हम. एंड इंजन हाउस ने भी वो बबल्स ऑब्ज़र्व की. लेकिन अगर डार्क में प्लांट को रख दिया जाता है तो कोई इस तरह के बबल्स नज़र नहीं आते, जो कि क्या शो कर रहे हैं कि लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. और लेटर ऑन व्हाट इंजन हाउस प्रूव दैट दिस बबल्स they are of oxygen. And in this way what it showed that green plants, they are able to do photosynthesis in the presence of sunlight and they release oxygen. Then in 1854 Julius von Sack, he also gave many of the evidences that when plants grow they do photosynthesis and they produce the product as glucose. And this glucose, it is prepared as the product of photosynthesis and it is stored by the plants in the form of starch. Now then later on many of the studies were done and it was proved that this green colored pigment which is known as chlorophyll is necessary for photosynthesis, and this chlorophyll is present in special bodies which are known as chloroplast. Now these green plants, they are able to do photosynthesis, they are able to do make glucose and this glucose it is stored as starch. तो जो ये वेरियस एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्होंने प्रूव किया कि सनलाइट इज़ नेसेसरी, क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी एंड green colored pigment, chlorophyll is necessary, sunlight is also necessary, and that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. After that T.W. Engelmann, he took a prism, and as we know that when a light is passed through the prism it splits into 7 कलर्स. तो उसने क्या देखा कि जब एक प्रिज्म से लाइट जो है वो पास हो रही है तो वो उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स यानी कि विबग्योर वाले कलर्स फॉर्म कर रही है. एंड देन इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गा, और उसके सामने उसने ग्रीन एल्गा को रख दिया. कौन सी एल्गा? क्लैडोफोरा नाम की एल्गा को. एंड प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरियाज. जो क्लैडोफेरा थी, जो ग्रीन एल्गा, वो एक लिक्विड के अंदर ली गई जिसके अंदर एरोबिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट थे. अब जो बैक्टीरियाज हैं क्योंकि एरोबिक हैं दे विल टेक द ऑक्सीजन, और उन्हें पता चल रहा था कि जो है ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है. व्हाट ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया जो हैं उन रीजन्स पर एक्यूमुलेट हो गए लाइट के. कहाँ पर? ब्लू एंड रेड लाइट, जो कि क्या शो कर रहा था कि जो स्पेक्ट्रम है उसका जो ब्लू और रेड लाइट वाला रीजन है that is mainly responsible for photosynthesis, and in this way it resembles roughly the absorption spectra of chlorophyll A and B. यानी कि जो क्लोरोफिल A और B का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो भी किसके बीच में है? ब्लू और रेड लाइट के बीच में. नाउ बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी जो फोटोसिंथेसिस है उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो गई थी कि प्लांट्स जो हैं दे आर यूजिंग लाइट एनर्जी, दे आर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड दिस इज़ द एम्पिरिकल इक्वेशन which represent the photosynthesis. CO2 plus water in the presence of light it gives CH2O means glucose plus oxygen. तो यहाँ पर CH2O जो है ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 6 कार्बन शुगर है.
नाउ फोटोसिंथेसिस में जो है एक और ग्रेट कंट्रीब्यूशन आई, जो किसने की, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्लिनियस वैन नील ने। कार्लिनियस ने क्या किया, उन्होंने अपनी स्टडी की पर्पल और ग्रीन बैक्टीरियाज पे, एंड व्हाट ही शोड कि जो फोटोसिंथेसिस है इट इज़ अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन in which hydrogen from a suitable oxidizable compounds reduces carbon dioxide. So what we are seeing here कि जब लाइट फॉल होती है, फोटोसिंथेसिस जब हो रहा होता है, जो लाइट क्या करेगी, ये फोटोसिंथेसिस में एक जो है हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2H2A प्लस CO2 गिव्स 2A प्लस CH2O प्लस H2O। तो क्या देख पा रहे हैं हम कि जो CO2 है वो क्या हो गई है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो है हाइड्रोजन, उससे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और क्या फॉर्म कर रही है, कार्बोहाइड्रेट। नाउ ग्रीन प्लांट्स में हम बात करें तो हाइड्रोजन डोनर जो है वो वाटर है, एंड इट इज़ ऑक्सीडाइज टू O2। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जांपल, जब हमने हाइड्रोजन सल्फाइड लिया हाइड्रोजन डोनर पर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, तो हमने क्या देखा, जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन ना होकर के क्या है, सल्फर है। इट मीन्स कि कौन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन डोनर जो है H2S लिया, और जो H2S लेने पर हमें जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, सल्फर। सो हम किस इन्फेरेंस पर पहुँचे कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय ग्रीन प्लांट्स कम फ्रॉम वाटर। वाटर जो है वो क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। जो ऑक्सीजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। एंड लेटर जो है इट वाज प्रूव्ड बाय रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक ऑल्सो। एंड नाउ द इक्वेशन इज C6 CO2 plus 12H2O gives in the presence of light gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। यहाँ पर C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है। ऑक्सीजन कहाँ से आई है, वाटर से आई है। एंड एक कहाँ से प्रूव हुआ, रेडियो आइसोटोप टेक्निक से भी प्रूव हुआ। एंड इन द बिगनिंग ये कैसे प्रूव हुआ, जब वाटर जो है उसे कंसीडर किया गया।